ایک شکاری کی سنسنیخیز داستان۔ وہ شکاری جو آدم خور درندوں سے لڑتا ہے، وہ درندے جو انسانوں کا گوشت نوچتے ہیں۔ جنگل میں ہر قدم موت کے سائے تلے رکھا جاتا ہے، اور یہ شکاری خطرے کو للکارتا ہے۔ پیش ہے آدم خور درندوں کے خلاف شکاری کی جنگ۔ مشہور شکاری جن کی تعداد 4 تھی، 3 تو وہیں غائب ہو گئے اور ایک بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آیا۔ اس نے جو انکشاف کیا وہ رائے صاحب اور کمشنر جانسن کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس شکاری نے بتایا کہ لوگوں کو اغوا کرنے والا کوئی آدم خور درندہ نہیں، بلکہ ایک جنگلی قبیلہ ہے جسے مقامی زبان میں ساسانی قبیلہ کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ قریباً 100 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 25-30 کے لگ بھگ عورتیں، بوڑھے اور بچے اور باقی مرد ہیں۔ یہ لوگ اتنے ظالم اور بے رحم ہیں کہ عام انسانوں کو پکڑ کر پہلے انہیں درخت سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، طرح طرح سے تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، پھر اس کو ایسے چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے ہیں جیسے جنگلی کتے ہرن کو ہرپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان آدم خوروں کے پاس نیزے، بھالے اور بڑے بڑے تیز دھار خنجر بھی ہیں۔ یہ قبیلہ جنگل کے اس قدر گھنے اور خطرناک حصے میں رہتا ہے جہاں عام انسان کی رسائی نہیں ہے۔ رائے صاحب نے شکاری سے پوچھا کہ تم اس قبیلے کو کیسے جانتے ہو اور ان کے چنگل سے کیسے نکل کر بھاگے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اور اس کے تینوں ساتھی جنگل کے گھنے حصے میں گھوم رہے تھے، تبھی انہیں ایک عجیب سا شور سنائی دیا، جیسے بہت سے لوگ مل کر شور اور غوغا کر رہے ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ ہم اس کا ٹھیک طرح سے تعین کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے، کسی نے ہمارے سروں پر جال پھینکا اور ہمیں گھسیٹتے ہوئے ایک خالی میدان میں لا کر لکڑی کے ستونوں کے ساتھ الگ الگ باندھ دیا۔ انہوں نے ہماری بندوقیں اور شکاری چاقو وغیرہ سب اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ ہمارے سامنے کچھ جنگلی نیزے اٹھائے آگ کے ایک روشن الاؤ کے گرد عجیب انداز میں رقص کر رہے تھے۔ ایک طرف اس قبیلے کی عورتیں، کچھ بوڑھے اور بچے کھڑے ہو کر کسی انجانی زبان میں کوئی کلام پڑھ رہے تھے۔ تمام جنگلیوں کے جسم اڑیاں تھے، بس جسم کے خاص حصوں پر کھجور اور دیگر جنگلی پتوں سے ستر پوشی کی گئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بھالوں کے علاوہ تیز دھاری خنجر بھی تھے۔ ان کی تعداد مجھے 100 کے قریب معلوم ہوئی۔ وہ کافی دیر تک آگ کے گرد رقص کرتے رہے۔ جنگل کا یہ حصہ انتہائی گھنا ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سورج کس طرف ہے، مگر اتنا اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ افق سے طلوع ہو چکا ہے۔ ہوا بند ہونے کی وجہ سے گرمی اور ہبس اس قدر زیادہ تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ جنگلیوں نے اس وقت تک اپنا رقص جاری رکھا جب تک کلام پڑھنے والوں کا پڑھنا بند نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر بلند آواز میں شور شرابہ کرنے لگے۔ پھر ان میں سے 2 نیزہ بردار جنگلی میرے ایک ساتھی کے پاس آئے اور اسے کھول کر آگ کے الاؤ کے قریب لے گئے۔ ایک نے اتنی زور سے اس کے پیٹ میں نیزہ مارا کہ وہ اس کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس کے بعد ان دونوں جنگلیوں نے اسے اٹھا کر آگ پر ایسے گھمانا شروع کر دیا جیسے مرغ کو سیخ میں ڈال کر آگ پر بھونا جاتا ہے۔ تمام جنگلی اس کی چیخیں سن کر اور زور زور سے شور کرنے لگے۔ اتفاق سے میرے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کچھ ڈھیلی رہ گئی تھی۔ میں نے تھوڑی سی جدوجہد کی تو اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور جنگلیوں کو اپنے شغل میں مصروف پا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑی مشکل سے بھٹکتا ہوا شام تک ایک دیہات میں جا نکلا۔ دیہاتیوں نے مجھے پانی پلایا۔ ان کے پوچھنے پر جب میں نے ان کو سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے تصدیق کی اور بتایا کہ ساسانی قبیلہ بڑا بے رحم اور آدم خور ہے۔ سینکڑوں سال سے یہ عام لوگوں کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں، مگر کوئی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکا۔ اگلے دن وہ مجھے بحفاظت شہر تک چھوڑ گئے۔ اس شکاری کے روداد سن کر رائے صاحب، جو اس وقت آسام کی راجدھانی توسی پور
में मुकीम थे, फौरन अपने शहर बरेली पहुंच गए। फिर इन्होंने दिल्ली सरकार से दरखास्त की कि जल्द अज जल्द उन आदमखोर जंगलियों का तदारुक करें, वरना वो बहुत से लोगों को अपनी खुराक बना लेंगे। जैसे ही दिल्ली के ऐवानों में ये खौफनाक और नाकाबिल यकीन खबर पहुंची, वहां भौंचाल सा आ गया और सरकारी सतह पर उन आदमखोर जंगलियों से निपटने के लिए तदबीरें होने लगीं। चूंकि राय साहब का एक रोब था, एक पहचान थी, अंग्रेज हुकूमत इन्हें कद्र की निगाह से देखती थी, इसलिए उनकी दरख्वास्त को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। आला सतह पर जब आसाम के आदमखोर कबीले के चर्चे हो रहे थे, तो जैक भी वहीं मौजूद था। उसने अपना तारुफ करवाने के बाद मुझे वहाँ बजवात का टाइगर के नाम से मुतारफ़ करवाते हुए बताया कि उन आदमखोर जंगलियों से हम दोनों के अलावा कोई अच्छे तरीके से निपट नहीं सकता। तो सरकारी हुक्काम ने फ़ौरन मेरी तलबी का हुक्मनामा जारी कर दिया। राय साहब को जब जैक के बारे में इल्म हुआ, तो इन्होंने फ़ौरन उसे दिल्ली से बरेली बुलाया, और जब मेरे बारे में मालूम हुआ तो इन्होंने फ़ौरन अपने 2 आदमियों को मेरी तरफ रवाना कर दिया, ताकि वो मुझे अपने खर्चे पर ला सकें। 3-4 दिन बाद बजरिया ट्रेन दोनों हरकारे हमारे दरवाजे पर खड़े थे। इन्होंने जैक का लिखा हुआ एक ख़त मुझे दिया और बाकी की चीदा बातें बताकर साथ चलने की अपील की, और ये भी बताया कि सरकारी तौर पर आपको बुलाया गया है। अगले दिन मैंने बरेली जाने की तैयारी कर ली और फजल को तमाम जिम्मेदारियां समझाकर ये ताकीद भी की कि वो मुझे वक्तन फ़वक्तन तमाम सूरत हाल लिखता रहे, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था कि वापसी की मुद्दत का कुछ पता नहीं था। हम तीनों सियालकोट से लाहौर, वहाँ से पठानकोट और फिर दिल्ली आ गए। इस सफ़र में हमें 3 दिन लगे। जैक दिल्ली में ही मौजूद था। हम इसकी रहाइश गाह में चले गए। इससे भी मुझे मालूमात मिलियन जो ख़त में लिखी हुई थी। बहरहाल एक दिन आराम के बाद हम बरेली की तरफ रवाना हो गए। ट्रेन की टिकटें भी राय साहब के आदमियों ने खरीदी थी। जिस डब्बे में हम चारों बैठे हुए थे, इसमें एक और शख्स भी मौजूद था, जिसकी शक्ल मुझे शनासा लगी, मगर मैंने इससे कोई बात करने से इज्तिनाब किया कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। मगर जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो उठकर मेरे पास आ गया। अरे जानी साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने पहचाना मुझे? इसने दोनों हाथों के साथ मुझसे मुसाफा किया। शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, मगर याद नहीं आ रहा। बेहतर है आप खुद अपना तारुफ करवा दें। वो बोला, मैं दौलत खान हूँ, एक बार आपके मामू मुर्तज़ा के साथ आया था आपके यहाँ। हाँ, याद आ गया। फिर वाकई मुझे याद आ गया। दौलत खान मेरठ के रहने वाले थे, नगर नगर घूमे थे और एक बार मामू के साथ बजवात भी आए थे। मैंने इन्हें पास बिठाकर मज़ीद हाल अहवाल पूछा और कहवा भी पेश किया। आगे किस तरफ जाने का इरादा है? इसने कहवे का घूंट लेते पूछा। जब मैंने इसे बताया कि हम आसाम के जंगलों में आदमखोर कबीले से 2-2 हाथ करने जा रहे हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से यूं हंसने लगा जैसे हमने कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। जनाब, वो कोई आदमखोर दरिंदे नहीं हैं जिन्हें घात लगाकर मारा जाए। वो वहशी आदमखोर सासानी कबीला है, जहाँ जाने से बड़े बड़े शिकारी डरते हैं। उन्हें वहाँ जाते हुए ज़रूर देखा जाता है, मगर वापस आते हुए आज तक कोई नहीं देख सका। मेरा तो मशवरा है बरखुरदार, तुम अपना इरादा बदल दो और वापस चले जाओ। खान साहब, डर के आगे हमेशा जीत होती है। वो मर्द ही नहीं होता जो मौत के खौफ से कदम वापसी की तरफ खींच ले। वैसे भी जो बीच रास्ते से मुड़ जाते हैं, मंजिलें उनका मुकद्दर कभी नहीं बना करती। मुझे तो इस बात की खुशी है कि इस खतरनाक काम के लिए मुझे चुना गया है। जैक बोला, वैसे भी हमें आसाम के जंगलात देखने का शौक था और हम अपना शौक ज़रूर पूरा करेंगे। ये सुनकर दौलत खान ने चुप साध ली और अपना स्टेशन आने तक कुछ ना बोला, लेकिन जब उतरने लगा तो बोला,
मेरा मशवरा है तुम लोग अपने साथ चंद दस्ती बम ज़रूर ले जाना, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाएं। मुझे इसका मशवरा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जंगल की तरफ जाते हुए दस्ती बम ज़रूर लेकर जाऊंगा। फिर मसाफत तय करते हुए हम बरेली में राय साहब की महल नुमा हवेली में पहुंच गए। वो ढलती उम्र में होने के बावजूद मजबूत जिस्म के मालिक थे। रात को खाने के बाद मैंने महसूस किया कि राय साहब का बस नहीं चल रहा था, वरना वो खुद जाकर उनको मलिया मेट कर दें। मैं उनके जज्बात समझ रहा था। उनके मेहमान और सगा बेटा उनकी भेंट चढ़ा था। वैसे ये बड़ी अजीब बात थी कि राय साहब बरेली के इर्द गिर्द शहरों को छोड़कर आसाम की राजधानी तौसीपुर में क्यों रहने जाते हैं, जो बरेली से काफ़ी मुसाफत पर थी। जब मैंने उनसे वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि एक तो उनकी शादी वहाँ हुई है और दूसरे उनके आबाओ इजदाद भी वहाँ के रहने वाले थे। मैंने राय साहब से कहा, हम आपसे वादा तो नहीं करते, मगर इतना यकीन ज़रूर दिलाते हैं कि उन आदमखोरों को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो मज़ीद आदमखोरी कर सकें। बस हमें ख़ास सामान की ज़रूरत है, जो आप हमें मुहैया कर दें तो काम आसान हो जाएगा। फिर मेरी दी हुई फहरिस्त के मुताबिक इन्होंने कुछ दस्ती बम, बंदूक के लिए आला कस्म के कारतूस और कुछ ज़रूरी सामान मुहैया कर दिया। दस्ती बमों के बारे में जैक का ख्याल था कि ये बेकार हैं, मगर मैंने इसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि ये किस काम आए, ये जंगल में जाकर ही पता लगेगा। एक दिन मज़ीद आराम करने के बाद अगली सुबह हम वसीपुर के लिए निकल खड़े हुए। राय साहब ने ट्रेन का पूरा डब्बा हमारे लिए वक्फ करवा दिया था, जिसमें वो खुद भी बड़े ठाठ से चंद मुलाजिमों के साथ बैठे हुए थे। बरेली से वसीपुर की मसाफत 3-4 दिन की थी, जो हमने काफ़ी उजलत में उबूर की। दोपहर के करीब हम स्टेशन से उतरकर राय साहब की रहाइश गाह की तरफ जा रहे थे। स्टेशन पर पहले ही उनके मुलाजिम 2 कारों के साथ मौजूद थे। एक कार में राय साहब के साथ मैं और जैक, और दूसरी में मुलाजिमों के अलावा सामान रख दिया गया। राय साहब की ये रहाइश भी नफासत भरी थी। हर कस्म की सहूलतें यहाँ मयस्सर थीं। बड़ा बेटा तो आदमखोरों के हथे चढ़ गया था। उनकी जवां साला बेटी ने मुझे देखते ही बुलंद नारा लगाया, रमज़ान उर्फ जानी, पंजाब का शीर, बड़ी शोहरत सुनी है आपकी। शोहरत इंसान की नहीं, उसके काम की होती है, मगर अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ, जब होगा तो शोहरत मज़ीद होगी। मैंने गोल मोल सा जवाब दिया। अगले दिन हमें वसीपुर से कंडावा गांव जाना था, जिसका दौरानिया 5 मील था। कंडावा से आगे 2 सड़कें शुरू हो जाती हैं। एक सड़क से 2 सड़कें निकलकर दाएं बाएं मुड़ जाती हैं। दाएं तरफ कंडावा से आगे 4 बड़े देहात हैं, शोगागा, चलौतरी, परागरामा और चनार घाटी। इसके अलावा और भी छोटे छोटे गांव हैं। कंडावा से बाएं सड़क पर जाएं तो सैगूर, अधेपुर, घाटशाला, फिर छोटे छोटे कई गांव अबूर करके ये सड़क सैली गाड़ी तक जाती है। इन 2 सड़कों के दरमियान तकरीबन 100 मील मुरब्बा पर फैला जंगल वाक़े है। हर कस्म के जानवरों से भरा हुआ ये जंगल इतना घना और वसी है कि इसकी गहराई जानना नामुमकिन है। हर तीसरे या चौथे रोज़ मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहाँ जगह जगह खौदरू झाड़ियाँ और दरख्त उगे नज़र आते हैं। इसके अलावा नशीबी इलाका होने की वजह से अनगिनत गड्ढे और उनमें ख़तरनाक दलदलें हैं, जिनमें जानवर तो क्या आदमी भी डूब जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। बाएं सड़क जो सैलीगढ़ी के पास जाकर ख़त्म होती है, उससे आगे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। मौसम सरमा में वहाँ मुसलसल बर्फबारी होती है। वहाँ पानी से भरे गड्ढों में ख़तरनाक चूंटियाँ रहती हैं, जो एक बार किसी ज़ीरू को चमट जाएं तो छोड़ने का नाम नहीं लेती। परागरामा से सड़क निकलकर जंगल के बीचों बीच होती घाटशाला से जा मिलती है। राय साहब के मेहमान और बेटा भी परागरामा से घाटशाला के रास्ते के दरमियान ही गायब हुए थे और उसी सड़क पर उनकी गाड़ी पाई गई।
राय साहब ने अपनी कार के साथ जो ड्राइवर दिया था, इसका नाम देवा था। देव मकामी आदमी होने की वजह से जंगल और उनके रास्तों के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था। इसकी जिम्मेदारी हमें परवुग्रामा और घाट शुमाला की दरमियानी सड़क तक छोड़कर आने की थी। आगे जाकर हमें इस बात की खोज करनी थी कि आया जो लोग गायब हो रहे हैं, इन्हें वाकई आदमखोर कबीले वाले उठा रहे हैं, या ये किसी दरिंदे की कारिस्तानी है जो अपना किया किसी और पर डालने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।